قرآن اسلام ریلیجن کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتاب جو آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں کتنے راز چھپے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج جو کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں ان میں سے بہت کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ مکہ کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ ہیرا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، جہاں نبی پاک کو اللہ کی طرف سے پہلا میسج ملا جو کہ سورہ العلق کی پہلی آیتیں تھی۔ اس دن کے بعد حضرت جبرائیل آتے رہے اور اللہ کا پیغام نبی پاک تک پہنچاتے رہے۔ نبی پاک نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جیسے ہی کوئی پیغام اللہ کی طرف سے آتا تو نبی پاک اسے اپنے صحابہ کو بتاتے۔ صحابہ جیسے ہی اس پیغام کو سنتے تو اسے فوراً یاد کر لیتے یا پھر کھجوروں کے پتوں اور پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 23 سالوں تک چلا۔ آخر 63 سال کی عمر میں نبی پاک اس دنیا فانی سے چل بسے۔ نبی پاک کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، یعنی کہ انہیں نبی پاک کا سکسیسر چنا گیا۔ نبی پاک کے دور میں قرآن کتاب کے شکل میں نہیں آیا۔ اس وقت قرآن لوگوں کے دلوں میں تھا اور پتھروں، ہڈیوں اور پتوں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابوبکر کا دور آیا تو اس وقت یمامہ کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حضرت ابوبکر اور مسلمہ جو کہ جھوٹا تھا اور خود کو نبی کہتا تھا ان کے درمیان ہوئی۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں 70 ایسے مسلمان مارے گئے جن کو قرآن یاد تھا، جن میں سے ایک صحابی ابو حذیفہ تھے جن پر نبی پاک قرآن کو لے کر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ تو ان صحابیوں کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو ساری آیتوں کو ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کرنے کے لیے ایگری کیا اور اس کام کی ذمہ داری زید بن ثابت کو دی گئی۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے قرآن کو کونسلنٹل اسکیلیٹن کو کمپائل کیا تاکہ لوگ قرآن کو صحیح سے پڑھ سکے۔ جب سے یہ قرآن کتاب کی شکل میں آیا ہے اس نے اپنے خاص ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جیسے جیسے سائنس گرو کرتی گئی قرآن کے راز ہمارے سامنے کھلتے گئے۔ جس لینگویج میں قرآن نازل ہوا ہے یہ عربک لٹریچر کی سب سے بہترین اور پرفیکٹ شکل ہے۔ اس کتاب کا ہر لفظ اور سینٹنس اپنے معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہ کتاب ایک ہی سبجیکٹ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے اور ہر بار اس کی ڈسکرپشن نئے سرے سے نکل کر آتی ہے۔ اس کے سارے الفاظ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو آج 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج تک اس لیول کی کتاب نہیں بنی۔ اس طرح کی کتاب انسان کے لیے لکھنا امپوسیبل ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت 88 میں بھی بتایا ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کے معنی لے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ نبی پاک نے بھی اپنی لائف ٹائم میں جو میسیجز دی ہیں ان میں سے بھی ایسی اپیل نہیں جو قرآن میں ہے۔ اس سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن نبی پاک نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی بچپن سے قرآن پڑھا تھا اور حضرت علی کے علم کے چرچے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ نہج البلاغہ جس کتاب میں حضرت علی کے خطبے لکھے ہیں، اس کتاب کی اپیل بھی قرآن کے برابر کی نہیں، کیونکہ یہ کتاب سب سے یونیک ہے۔ اسے سننے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اس کے الفاظ انسان کی روح میں اترتے ہیں، جس کا ثبوت ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے۔ بہت سے لوگ تو صرف قرآن سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے برکت کے طور پر نازل کیا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنے سے آپ کے برین میں کتنے ڈسٹریکٹلی چینجز آتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے ڈپریشن اور انگزائٹی دور ہوتی ہیں۔ اس ریسرچ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ریسرچ میں ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگوں کو آبزرو کیا گیا، جیسے اسٹوڈنٹس، پریگننٹ وومن، اور یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنا انسان کے لیے کسی تھراپی کی طرح ہے جو ڈپریشن اور انگزائٹی کو دور کرتا ہے۔ قرآن نے اوور دا ٹائم مسلم سویلائزیشنز کی مینٹلی سچویشن کو بہتر کیا ہے۔ قرآن کی صرف رائٹنگ ہی یونیک نہیں ہے بلکہ اس میں کئی سوالوں کے جوابات چھپے ہوئے ہیں جن کا جواب سائنس کو اب جا کر پتہ چلا ہے، لیکن قرآن نے یہ سب
1400 साल पहले ही बता दिया था। बिग बैंग, ब्लैक होल, अर्थ रोटेशन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, आयरन, फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोप्लास्टिसी और ह्यूमन क्रिएशन, इन सबको कुरान पाक ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आज साइंस को जानने में इतने साल लग गए। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 और ड्यूल प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बताया है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान में हजरत यूसुफ अपने बाप को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारे यानी 11 प्लैनेट्स को देखा है। यही नहीं, आप सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि इंसान का दिल भी सोचता है। आपने बिल्कुल सही सुना। ये चीज जो हमारी बॉडी में खून पंप करती है, कुरान कहता है कि हम इससे सोचते भी हैं। अभी तक तो सबको ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है, जिससे ये पता चला है कि इंसान के दिल में 40,000 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये सेल्स इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और फील करते हैं। साइंस बिलीव करती है कि इस दुनिया में पानी मेटीवर के जरिए आया है, और कुरान ने यह भी पहले बता दिया था। और सिर्फ यही नहीं, कुरान ये भी कहता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। अब जाकर साइंस को ये पता चला है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 80% पानी से बना होता है। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। 28 नवंबर 1967 को पुल स्टार की साउंड को डिस्कवर किया गया। इस साउंड में ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। कुरान ने इसी स्टार का जिक्र 1400 साल पहले कर दिया है। उस आयत में इस स्टार का नाम तारिक लिया गया है। तारिक का मतलब होता है पीटना। इस साउंड पर अगर आप गौर करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है। कुरान में इस तारे को चमकने वाला तारा कहा गया है, जैसा कि पल्सर स्टार होता है। 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया कि हमारे प्लेनेट अर्थ के अराउंड लेयर्स है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एम्ब्रायोलॉजी को भी 100% एक्यूरेसी के साथ कुरान ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कुरान के चैप्टर 6 में बताया गया है कि हजरत इब्राहिम की कौम सूरज, चांद और सितारों की पूजा करती थी। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि इस रीजन के लोग सच में उनकी पूजा करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉलेज हजारों साल तक गुम रही। अब रिसेंटली ही इसे 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंसान अपनी आंख के प्यूपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये करना इंसान के लिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों के प्यूपिल ड्यूलेट होते हैं, यानी कि आप किसी इंसान की आंखों से पता कर सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच। और यही अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने में छुपाते हैं। इसके अलावा भी कुरान के बहुत से मिरेकल्स है। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हैं। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इस प्लैनेट का जिक्र कुरान सूरह अल-मारिज में करता है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह शम्स। इस सूरह के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरत में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होता है। यह कुरान की वाहिद ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 सूरह है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरह में टोटल आयात भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरह के टोटल आयत है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंसदानों ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बैंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन
हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा आमाल को लपेटता है। हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफर करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को अफेक्ट करती है। कुरान ने इसका जिक्र सूरह अल-हिज्र में किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते हैं ताकि दिन के वक्त इसमें चढ़ जाए, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इसे पेरिटाइज फोर्सेस कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह इस्रा आयत नंबर 49 में किया है और उन्होंने कहा कि जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर्स बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर को मार कर फेंक देती हैं और फिर कुछ वक्त के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मार कर फेंक देती है। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं उनके मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया। वो बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में यह भी बताया गया है कि घर फीमेल स्पाइडर्स बिल्ड करती है, न कि मेल स्पाइडर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंस का यही मानना था कि घर मेल स्पाइडर्स बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल। लेकिन आखिरकार हमेशा की तरह कुरान सच निकला और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली एग्री करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान के उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर है कि उसकी उंगलियों के पोर पोर तक को ठीक कर दे। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं दरअसल ये स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मिट्योर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है। और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी और हमने लोहा उतारा। इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह आलम में बयान किया है और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। इस आयत पर गौर करो, यहाँ लिखा है कि इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती। सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर की डेप्थ में जो जानवर है वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहाँ भी रोशनी देता है जहाँ इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के डेप्थ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया का पानी नहीं। आज से हजारों साल पहले मिट्योर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत से जियोकेमिकल स्टडीज से ये पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहराया और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर है। यह है रिसर्च नेबुला। इसे 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फेलियम ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक आसमानों और जमीनों की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था और किसी इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतने कमाल का है कि आपके होश उड़ा देगा। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا